My name is Barkha Jamwal and I'll be taking the subject of human resource development strategies and systems. There are a few keywords if you notice in this headlines. Strategies and systems. What do you think is strategy? Anybody? Strategy, what do you think is a strategy and how is it different from tactics? Have you heard of both of these terms? Strategy and tactic, right? So what do you think is the difference? We many a times we use it interchangeably, but there might be a difference. अगर दो शब्द हैं तो difference भी होगा ही. Okay. Correct, Prerna. As told by her, strategies are a long-term planned thing that you have planned for something in the next 5 years. आपने plan किया है कि you will be getting a job, you will be applying for a job in HR department of a very good MNC. That's your strategy. Tactic is, let's say an interviewer puts a question which is let's say you need to dodge it or you need to answer it in some other way. Then you will use a tactic. That is उसी टाइम जो आपने सोचा, उसी टाइम आपने जो सिचुएशन को हैंडल किया, that is a tactic. Both can go hand in hand. Let's say for an HR interview, for an HR manager interview, you are placed something, you are you have been put a question जो आपने prepare नहीं किया है. तो you need to decide accordingly उसी situation में उसी time पे you need to employ a tactic, right? Systems, दूसरा शब्द यहाँ पे जो है that is system. What is a system? What do you think is a system? जैसे बोलते हैं ना system ही ऐसा है. What do you think is a system? Okay. Interconnected departments, interconnected things, interconnected rules and regulations that make a particular institution, let's say. कंपनी के अंदर ये सिस्टम है, इस कॉलेज के अंदर यही सिस्टम है, मतलब पहले से ही कुछ चलता आ रहा है, कुछ इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं. दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोज इन दिस इंस्टीट्यूशन. सिस्टम, ठीक है? ओके. Basically you have 5 main headings, 5 main units. I think Namita ma'am has covered unit 1 but she asked me to revise it again. Unit 1 deals with human resource development, evolution and concepts. Do you think that human resource development was as it is from the very beginning? No, ma'am, it has changed a lot. How? What was it from the very beginning? Earlier, I think so we didn't used to pay much attention towards this department that we will be able to manage it. But right now, separate departments are there, other things are there. So, ma'am, due to which we are able to easily manage it and organize it in a systematic manner. Okay. Your name please? Sunidhi. Okay. As stated by Sunidhi, that पहले ये department was not used to be there. It used to be there but not formally. Yes. It was there but not recognized, right? तो पहले क्या होता था? क्या पहले गुरुकुल नहीं होते थे? क्या पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी? क्या पहले स्किल डेवलपमेंट नहीं होती थी? It used to be there, right? But it was not a specified department, right? नीड क्या हुई डिपार्टमेंट मेंटेन करने की? व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? In the performance, upgradation of the employees. ओके, वेरी गुड. अपग्रेडेशन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉई, करियर पाथ डेवलप करने के लिए एम्प्लॉई के, एंड टू रिटेन द एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड दिस सेल, यू नीड दिस सिस्टम, यू नीड दिस डिपार्टमेंट. अदरवाइज क्या होगा? Otherwise what will happen is, if your organization is not motivating the employees to do something better in their lives, motivating the employees to improve their skills, they leave the organization eventually. And then they will be demotivated too, and the other thing is that they feel bored because of the monotonous things. It will not. Right? If you are stuck with the same job for the last, let's say 20-30 years,
what will your life be like? Right? You will be coming like a robot, you will be delivering a lecture like a robot, and then you will be going home like a robot. आँख बंद करके भी गड्ढे भी याद हो जाएंगे, and then you will be going as it is. If there is no upgradation, upskilling, right? Most importantly, organizations deal with people. People are a resource. You people are a resource. You people, in whatever organization you might be employed in, you will be a resource. चाहे वो रिसोर्स गोल्ड हो, उसको डिग करने के लिए पैसा खर्च होता है, चाहे वो रिसोर्स लोग हों, उनको भी अपग्रेड करने के लिए, उनको एम्प्लॉय करने के लिए, उनको काउंसिल करने के लिए, उनको मेंटोर करने के लिए पैसा खर्च होता है, राइट? सो व्हाई वुड एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लेट गो ऑफ द एम्प्लॉय ऑन whom they have spent so much, right? In their acquisition, in their retention, and in their upgradation, right? So first unit talks about the evolution of HRD. Challenges and goals of HRD. What are the challenges right now? What do you think? Ma'am, the main challenge is that HR is not, it is not easy to manage. It is not that much easy to manage the people, their work. Why? Yes, it's not easy to manage. Why? Ma'am, because of the restrictions. Because we deal with the humans. Because people are diverse in nature. Everybody has a specific, distinct set of qualities in them, traits in them, personalities in them. You cannot manage everybody equally. You cannot manage everybody alike, right? किसी को हो सकता है mentoring की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, किसी को हो सकता है किसी कुछ एक बार बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े. That person is self-motivated and will do the things on their own, right? So that could be one of the challenge. Another challenge could be technology. We'll be dealing with all the things later in detail. HRD function and staffing. ठीक है, HR का function main यही है, staffing. Roles and competencies of HR professionals. HR professional की competencies क्या होनी चाहिए? What should be the skill set in them? आप लोग HR manager बनोगे. What should be the skill set that you should be carrying? HRD climate. क्लाइमेट क्या होता है? Okay, in the context of this, atmosphere in the organization, right? What is culture then? And what is the difference between culture and climate? Right. So that depends on the habits or the things which they usually do. Culture basically depends upon the values, traditions, beliefs that have been passed on from generations and years. Organization का culture यही है. हम ऐसे local language में बोल जाते हैं, but what does it mean? कि the organization has been following these things from the past so many years that now it has been imbibed into their genes, let's say, genes of the organization. That has become the culture, that has become the part of organization. In several offices there is a culture of flexibility, flexible timelines, but in some offices that is not the same. You have to come at sharp 9 and then 5 or 6. That is the Right. So that's the culture formed and passed on from years. ठीक है. Climate क्या होता है? Climate is short term perspective, right? And that is basically how people, how outsiders, how employees perceive the organization to be like. Okay. Culture is passed on from years to the into the organization. It has been imbibed into the organization. Climate is a short term perspective that the people, outsiders and the employees feel कि कंपनी के अंदर ये चीज़ है. Yes, yes. मान लो बहुत ज़्यादा आजकल फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लोजिंग हो रही होती है, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. उस टाइम पे क्लाइमेट इज़ वेरी हेक्टिक, राइट? कल्चर तो हेक्टिक नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन का, कल्चर इज़ फ्लेक्सी वर्क टाइमिंग्स, बट उस टाइम पे द क्लाइमेट इज़ वेरी हेक्टिक, राइट? क्लाइमेट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल.
We are overburdened with work for the meanwhile. So that is the climate. How the people perceive the organization to be for the at the particular period of time. Okay. Systems approach to HRD. Systems approach is basically everything combined, interlink of everything. क्या HR के अंदर सिर्फ HR डिपार्टमेंट ही है? There is every other department is separate? No, everything is interlinked, right? And the principles. Second unit talks about design and administration of select HRD systems. हम कुछ systems के बारे में पढ़ेंगे and then we'll be seeing कि किस तरीके से इनका designing है. Career management, workplace mentoring, right? Career planning, right? Career planning and career management. What do you think is the difference? Career planning, career management. किस किस के पास यहाँ पे business organization and management था 12th में? Right? क्या था those 5 functions of management? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Right? Management was what? The heading. One part of it was planning. Right? Linking that to it, that to this. Planning is basically career planning. How I am planning my career to be. Individualistic approach, employee centric approach. How I am planning my career in the next 5 years, in the next 10 years. That is the plan I have for myself. Career management. What the organization is planning for my career. Right? जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, इंटरव्यू अच्छा हुआ तो लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना. अगर वो ना पूछे, दे ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. यही बोलना कि हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने आप को बेटर पोजीशन पे, मच हायर पोजीशन पे देखना चाहते हैं. राइट? एंड एट द एंड ये भी उनसे ज़रूर पूछना दैट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर माई डेवलपमेंट. इज देयर एनी अपस्किलिंग, अपग्रेडेशन प्रोग्राम दैट यू प्रोवाइड. ठीक है? सो दैट आपका करियर पाथ तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप 10 साल रुकने की सोच रहे हो, देन व्हाट इज़ द पाथ दैट दे विल बी अलाउइंग यू टू फॉलो. राइट? जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लेट्स से Deloitte, what Deloitte does is after you have completed a few years, let's say 2 years in the organization Deloitte as an analyst, they ask you to pursue a course in UK, that is CPA, Certified Public Accountant. They pay, they fully fund that course, and then you have to study and pass the examination in the next 2 years. ओके पहले 2 साल के लिए वो पे करते हैं. 2 साल का ही कोर्स होता है, 2 साल में जनरली हो भी जाता है. बट इफ़ इन केस समबडी इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट इट, देन आपको अगली बार के लिए खुद करना पड़ेगा या फिर ड्रॉप करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज़ द पाथ दे हैव ड्रॉन फॉर यू टू फॉलो. राइट? वर्क प्लेस मेंटोरिंग. आपने क्या वर्ड बोला था मेंटोरिंग के अलावा? Difference between mentoring and counseling? Ma'am, in mentoring, you just give the people feedback. It's like, sorry, you just tell them that you should do this and this, like. And in counseling, the person has the problem and you give them the solution. You just suggest them. Okay. Then what is coaching? Coaching versus mentoring. Anybody? It's a free classroom, right? You can speak. Coaching. Coaching is more formalized, right? Right. Mentoring is more informal. Mentoring is more like a help to the people who come as a mentee, right? It is more mentee focused. Let's say I am a mentor and you are my mentees. If in case I allocate 1 day in a week for you कि एक हफ्ते इस दिन में आके आप इतने से इतने घंटे तक मुझसे SL में आके बात कर सकते हैं. So that's a mentor mentee, right? I am not coaching you. यहाँ पे this could be a coaching that I am upskilling you, I am teaching you something, I am training you for something. That could be coaching. So, ma'am, can we add mentoring as like our parents are giving us? So, can we say that they are all mentoring because it is important? So, can we add
okay, that is more like an advice, right? That is more like guidance. Mentoring is specifically related to work related, formal related things, right? ठीक है. Unit 3 talks about work life integration. Again, you have a work and then you have a life, personal life, right, to balance both. How do you integrate the both? What are organizations doing to integrate both for you? Flexi work timings, work from home, right? आजकल तो वर्क फ्रॉम WFM भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स. People are working from mountains, people are going, people are staying in the mountains and then working from there. Many of my friends who are working in the corporate sector, in the software engineering department of the firms, they are working from the mountains, not from home, right? So the company has given them flexibility कि 3-4 महीने तक you need not come to any of the workplace, you stay where you want to be and then work peacefully, right? Developing global managers. One of you might be, or all of you might be the global managers, global HR managers. You will be handling diverse people from all the ethnicity and races. How will you manage them? You cannot devise one training program or one session for everybody in totality. You need to devise different things for different people over there, right? So how will you manage the diversity? We'll see here. Unit 4 talks about applications of HRD. Managing organizational change. जितना आसान ये लगता है ना, there is a quote, change is the only constant, right? Change is the only constant. जितना छोटा and जितना easy ये phrase है, उतना difficult है to implement it. Change, चाहे छोटा सा change हो, चाहे आपको let's say कल को मेट्रो बंद हो जाए, बस से आना पड़े, छोटा सा चेंज है, राइट? बट मैनी ऑफ यू विल बी लाइक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जाएं या ना जाएं, कितनी जल्दी उठना पड़ेगा, इट विल बी इम्पैक्टिंग योर होल स्केड्यूल. एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड ड्यू टू वन चेंज, राइट? तो एक छोटा सा चेंज भी आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, बट हाउ यू टेक दैट इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी, if you all want to be, let's say, either you will be the maker of the organization or you will be the employee of the organization, one of the two, right? दोनों चीज़ों में ही आपको लोगों से बातें करनी है. अगर आप HR मैनेजर्स बनोगे, then you have to motivate, train, guide, counsel people, keep them in the organization, right? So उस केस के अंदर many a times there will be technological changes, many a times there will be departmental changes, many a times there will be team change. दोस्त प्रमोट हो गया, नहीं एक नहीं हुआ, बाकी दो प्रमोट हो गए. How will you manage that, right? How will you motivate that person who is left behind? How will you guide them to upskill themselves to reach at that level where his friends are? ठीक है, तो चेंज मैनेज करना जितना सोचने में इजी लगता है उतना डिफिकल्ट है टू इम्प्लीमेंट, राइट? HRD फॉर वर्कर्स, ब्लू कॉलर जॉब. ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? ओके, राइट. एज द नेम सेज वाइट कॉलर, गंदी ना हो इसलिए बैठ के काम करना है, राइट? ब्लू कॉलर, डार्क ब्लू. गंदी हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, कलर डार्क ब्लू है तो फील्ड वर्क करो, राइट? तो उनमें कैसे आप how the HR department plays the role in both of the departments, we'll see. And Unit 5 talks about HR audit and the additional HR system with case studies. ठीक है? Okay. Difference between HRM and HRD. What do you think? HRM and HRD. एक है मैनेजमेंट, एक है डेवलपमेंट, बस एक शब्द का फ़र्क है, राइट? कौन सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है? डेवलपमेंट, राइट? अगर हम बोलें कि हम मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को शॉर्ट टर्म,
हम डेवलप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, हम डेवलप कर रहे हैं कोर्स, हम डेवलप कर रहे हैं पूरा करियर पाथ. दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो HRM इज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एंड HRD इज लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव. एक बार रीड कर लेते हैं. फोकस. फोकस क्या होता है HRM का? अभी लिखो मत, आई विल गिव यू टाइम. राइट, बस मेन हेडिंग्स लिख लो, या तो डू नॉट राइट एवरीथिंग, जस्ट बी विथ मी. ओके. Focus. HRM focuses on administrative and operational aspects of managing organization's workforce. Day-to-day function कैसे manage होते हैं. As we earlier also said, planning, directing, staffing, controlling. This is the management thing. ठीक है, किस तरीके से मैनेज करना है लोगों को ताकि लोग छोड़ के ना जाएं, किस तरीके से स्टाफ करना है, कितनी वर्कफोर्स चाहिए. राइट. रोल. Role of HR manager is what? Staffing, controlling, not controlling, staffing, recruitment, job designing, compensation, bonuses, benefits. Ma'am, in HR department, all the departments are there. All, it is connected, it is not a separate. Right, right. And in HR management, we manage the human resource. See, I'll tell you. The evolution, इसके बाद हम evolution ही पढ़ेंगे HRM and HRD के बाद. पहले सिर्फ ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती थी, देन HRM आया, देन HRD आया. ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ. देयर आर 6 लेवल्स. राइट. पहले सिर्फ ट्रेनिंग डेव होती थी कि लेट्स ट्रेन देम, लेट्स अपस्किल देम, लेट्स गिव देम सम स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर देम टू परस्यू. पहले सिर्फ इतना होता था, नो फॉर्मल डिपार्टमेंट्स. देन HRM आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. देन नीड आई दैट यू पीपल आर ऑल्सो रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. राइट. देन उसके बाद आया कि मैनेज करने से ही नहीं होगा. लेट्स से मैनेजमेंट इज व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ग्रीवियंस रिड्रेसल. किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई एम लिसनिंग टू देम, आई एम सॉल्विंग देयर ग्रीवियंसेस, दैट इज मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दो लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट इन द टास्क दैट इज बीइंग अलॉटेड टू देम, सो आई एम मैनेजिंग इट, आई एम मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट. डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव वेयर आई डिज़ाइन कोर्सेज फॉर यू, वेयर आई ले द पाथ ऑफ करियर डेवलपमेंट फॉर यू. सो वो तो बहुत बाद में सोचा गया. राइट. पहले लोग हैं, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग हो गई, फिर उसके बाद लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनको मैनेज करो. देन उसके बाद मैनेजमेंट ही नहीं, उनको डेवलप भी तो करो. राइट. ओके. शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, ये मैंने बता दिया. शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया, शॉर्ट टर्म थिंग्स. स्टाफिंग हो गई, आपने लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, रिक्रूट कर लिया, बोनस दे दिया, दैट्स इट. कंप्लायंस सेंट्रिक. कंप्लायंस सेंट्रिक का क्या मतलब है कि जो भी लेबर रेगुलेशन, लेबर लॉज, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेट्स से मिनिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, वेजेस, मिनिमम मैक्सिमम वेजेस, राइट, कितना आवर वर्क वीक होना चाहिए, वो सब कौन देखता है? पहले होता था HR मैनेजमेंट के अंदर कि HR डिपार्टमेंट सीज, HR डिपार्टमेंट मैनेजेस दीज थिंग्स. ठीक. एफिशिएंसी. एफिशिएंसी आप कैसे टैप करोगे कि कौन कितना एफिशिएंट है? क्या आप सारी एक्टिविटीज़ देखोगे? नहीं. की परफॉर्मेंस एरियाज और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI, जो की एरियाज हैं आप उन्हीं पे फोकस करोगे. यू कैन नॉट सी कि 9 to 5 हाउ द पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग. अदरवाइज अगर आपने ये करना शुरू कर दिया देन देयर विल बी सच अ ह्यूज डेटा विद यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू नो हाउ टू rate the employee as efficient or non-efficient or moderately efficient. राइट. तो की रिजल्ट एरियाज होते हैं, की परफॉर्मेंस एरियाज होते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकता है? कितने कम एरर्स के साथ वो सॉफ्टवेयर बना रहा है. ठीक है. एरर्स इंडिकेटर इज कितने कम बग्स के साथ, कितने कम एरर्स के साथ सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड efficiently in time provided. राइट. आप उसका टी ब्रेक नहीं नोटिस करोगे, आप उसका ये नहीं नोटिस करोगे कि कितनी बार नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, कितनी बार वो पंच इन पंच आउट कर रहा है, क्या वो ऑफिस में आ रहा है या नहीं. बट अगर यही ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एक लेट्स से
व्हाट डू वी से, मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स के अंदर इन एंड आउट टाइम नोटिस करना चाहिए, बिकॉज लोगों का मेन काम वहाँ पे क्या है, टू बी इन दी असेंबली लाइन। एक सिर्फ बंस को देख रहा है, एक सिर्फ उनको कट कर रहा है, एक सिर्फ उनके लिए टिक्की फ्राई कर रहा है, एक उनमें सिर्फ और सिर्फ केचप डाल रहा है। तो एक भी पर्सन अगर मिसिंग है उस लाइन में से, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। वहाँ पे आप इन एंड आउट टाइम देख सकते हो, राइट। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, हर लेवल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो वो आपको यहाँ पे देखना है एफिशिएंसी टैप करने के लिए, एंड इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड, राइट। HRD अगेन, फोकस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द फोकस ऑफ हु, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉई, ओके, लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव। रोल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पीछे क्या रोल था, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम, सैलरी ऑन टाइम, राइट, बोनसेस ऑन टाइम। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ट्रेन कैसे करोगे, डेवलप कैसे करोगे, उनका करियर प्लान कैसे करोगे, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, राइट। एंड क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग कल्चर, नॉट अ क्लाइमेट कल्चर, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आ रहे हो, यू विल बी सपोज टू डू अ कोर्स आफ्टर 2 years। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाथ ये है कि 6 साल के अंदर इफ एवरीथिंग गोज वेल, यू कुड बी अ डेप्यूटी मैनेजर, राइट। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, राइट। डेवलपमेंट सेंट्रिक, क्या है यहाँ पे मेन फोकस, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कंटिन्यूस लर्निंग एंड करियर प्रोग्रेशन। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस में यहाँ पे क्या है, हाउ विल दी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट, कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए एम्प्लॉय कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनोवेटिव एंड प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव क्या होता है और रिएक्टिव क्या होता है, राइट, कि डांट पड़ने का वेट कर रहे हो, दैट विल बी रिएक्टिव, अच्छा उसके बाद काम करेंगे। प्रोएक्टिव इज कि आप पहले से ही काम करके रखो, यू विल नॉट बी स्कोल्डेड, यू विल बी अप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे HRD के अंदर इट इज़ अ प्रोएक्टिव एनवायरनमेंट, मतलब आप पहले से ही देख रहे हो दैट व्हाट विल बी द स्किल सेट रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट 5 years, उसकी ट्रेनिंग आज से ही देना शुरू कर दो। प्रोएक्टिव एनवायरनमेंट, डू नॉट वेट टिल द चेंजेस आर एक्चुअली बीन डन, अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी लैगिंग बिहाइंड द रेस। ईच अदर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ सेट ऑफ एम्प्लॉयज जो कि ऑलरेडी ट्रेंड होंगे in let's say a particular software, in let's say a particular technology, but in your organization if you are not being proactive, if you are being reactive, then technological changes आएंगी, then you will be understanding, then you will be seeing कि क्या changes आ रहे हैं, then you will be reading all the things newspaper में, अच्छा ये adopt करना ही पड़ेगा, हमें paper based system से online based system में आना ही पड़ेगा। ओ अब हम किसी से कोटेशन लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दो। बाय दैट टाइम एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव ऑलरेडी डन द अपस्किलिंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस केस के अंदर क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट बीइंग प्रोएक्टिव, अगर फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अगर कुछ एम्प्लॉयज़ को जाना भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, then those people will not be skilled enough to get a job anywhere else, right। तो एक कल्चर ही ऐसा बनाओ which is learning in nature, at every step, every let's say 6 months you have to take a course, every after 1 year you have to take a refresher or some upgradation course, okay। evolution, सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एरा, प्री 1960s, उससे पहले क्या होता था कि सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेनिंग करनी है, कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइविंग, अच्छा ड्राइविंग सीख लो। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने ये इसमें बॉटलिंग करनी है, बस ये सीख लो, आगे पीछे कुछ नहीं, राइट। नो नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग उससे पहले, व्हाट विल हैपन उसके बाद, बस अपने काम पे फोकस करो,
एंड दैट इज़ इट. प्री 1960s ट्रेनिंग कर दी फॉर द पर्टिकुलर जॉब दैट यू आर इनटू. ह्यूमन रिलेशंस एरा 1960s टू 1970s. यहाँ पे पता लगा ओ लोग हैं आपस में लड़ेंगे, राइट इनके ग्रीवियंसेस भी होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो यहाँ पे ह्यूमंस पे फोकस करा गया, राइट. तो इसके अंदर क्या था, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, हाउ पीपल इंटरैक्ट, राइट. इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी होनी चाहिए, दैट वाज द फोकस. Emphasis on improving communication, how to be soft spoken, soft skills, right. Communication is the one of the soft skill. ऊपर क्या था, hard skills, right. Technical जो भी चीज़ें हैं, those you used to learn in training and development era. Then performance improvement era 1980s to 1990s. यहाँ पर क्या हो गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचने लगे कि वी आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन देयर वर्क. किसी का कोई सजेशन है तो वो भी हमें दे, राइट. समटाइम्स सम ऑफ द बेस्ट सजेशंस कम फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टाफ, क्योंकि उन्हीं को निटी-ग्रिटीज़ पता होती हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, right. Okay. Then comes a competency based era. Competency के अंदर क्या आ गया कि what is competency? Competence क्या होता है? My question. Competency is a skill which you have, which that are you able to do this particular work in a limited of time, or are you able to do this work or not. Besides, even if you are not capable enough, then also you are taking the challenge and you are doing that work. The urge and skill set, urge to learn and the skill set that you possess is the competency. क्या आप में सीखने की क्षमता है, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या आप केपेबल हो. एट टाइम्स क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्पिटेंसी वाला एरा, एट टाइम्स क्या होता है कि लेट्स से एन एम्प्लॉय इज रिटायरिंग एट ए एज ऑफ 60, राइट. अभी करेंट एज ऑफ द एम्प्लॉयज लेट्स से 55, ओके. आप उसको कुछ सिखाओगे? नो, राइट. वॉट यूल एक्चुअली डू इज़, अगर आपको इस एम्प्लॉय से एक्चुअली काम चाहिए, वॉट यूल डू इज़ यू विल यूज़ द एक्सपीरियंस दैट द एम्प्लॉय हैज़ ऑलरेडी. आप उससे सजेशंस मांगोगे, आप उसको नई चीज़ें सिखाने नहीं लगोगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हर साल में ट्रेनिंग कोर्स होता है, अब आप भी करो, राइट. नाउ यू विल यूज़ द टैप ऑन टू द एक्सपीरियंस दैट द पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज हैविंग. बहुत लॉयल एम्प्लॉय है, बहुत टाइम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, इन एंड आउट पता है, उसने पूरा ट्रांजिशन देखा है ऑर्गेनाइजेशन का. दैट पर्सन शुड नॉट बी आस्क्ड टू लर्न न्यू थिंग्स एट दैट एज, राइट. Maybe if the employee has the urge and capability to learn, maybe then हो सकता है उसको सीखने का खुद मन है तो वो सीख ले. Otherwise at that age you should just tap onto the competency and the experience. Learning and development era, e-learning, electronic learning, right. 2000 से present आजकल यही हो रहा है. ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स कितने आ गए हैं, राइट. Coursera, edX, right. There are so many learning platforms, online learning platforms over the internet that you can access even free of cost, right. So online learning era 2000 to present. इंडिया के अंदर इंटरनेट कब आया? वाई इज दिस 2000 ओनली? उससे पहले लर्निंग ई लर्निंग फेज क्यों नहीं आ गया? क्योंकि इंटरनेट ही 1995 में आया, राइट. उसके बाद ही तो ई लर्निंग आएगा. देन स्ट्रैटेजिक HRD एरा. अब ये 4 एराज हैं विच आर लाइक कॉन्टेम्पररी एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट, ये 2 और इसके अगले वाले 2. स्ट्रैटेजिक HRD एरा, स्ट्रैटेजिक एज आई टोल्ड, राइट. प्लान कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए, राइट. लीडर्स डेवलप कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में. देन कंटेम्पररी का मतलब होता है न्यू, एट प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग, राइट. जो कि आगे जाके
they will be there. Digital and technological era. Digital era ही चल रहा है आजकल, right? This is also digital live class, right? People sitting at home can also learn from it. Global and inclusive HRD, diverse, right? Boundaryless organization का सुना है? Boundaryless organization. An organization which has no boundaries. मतलब क्या वो हर जगह एग्जिस्ट करती है? नहीं, वो एक क्लाउड पे एग्जिस्ट करती है, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है, राइट? लेट्स से सॉफ्टवेयर, फ्रीलांसर्स, राइट? फ्रीलांसिंग, लेट्स से फ्रीलांसर्स क्या होता है? देयर इज एन एग्रीगेटर. एग्रीगेटर क्या होता है? अमेजोन है एग्रीगेटर. अमेजोन का खुद का कुछ नहीं है. ऊबर एक एग्रीगेटर है. ऊबर की खुद की टैक्सीज नहीं है, राइट? एग्रीगेटर मॉडल के अंदर क्या होता है? वेयर द सेलर्स एंड बायर्स मीट ओवर अ मार्केट. मार्केट लाइक अमेजोन, मार्केट लाइक ऊबर, राइट? सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, बायर्स उनसे खरीदते हैं ओवर द एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. जोमैटो एग्रीगेटर. आजकल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इन है, राइट? सो इसके अंदर क्या है कि फ्रीलांसिंग लेट्स से कोई कर रहा है, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्ट ओनली इन द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट. उन्होंने ही एडवर्टाइज किया अपनी जॉब कि वी रिक्वायर दीज मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वी रिक्वायर दीज मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, वी रिक्वायर दीज मेनी human resource people to hire these people. They have given an online space, cloud space, and then वहाँ पे सब लोग registered हैं, ठीक है? तो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्लोबल से आपके पास हर जगह से लोग आ सकते हैं. डाइवर्स कल्चर हो सकता है इंडिया में भी एंड आउटसाइड में भी. इंडिया से तो लोग आएंगे ही अगर आपकी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो, और .com है, .in नहीं है, तो बाहर से भी आ सकते हैं, राइट? तो डाइवर्सिटी को कैसे आप मैनेज करोगे, वो अभी भी आजकल यही चल रहा है. यस. .in इज इंडिया, .org इज गवर्नमेंट या फिर चैरिटी, ठीक है? .org. एंड अभी और क्या चल रहा है? सस्टेनेबल एंड एथिकल HRD. Sustainable and ethical HRD. How to develop employees which are ethical in nature, which are mindful in nature. आजकल otherwise क्या हो रहा है? What I have experienced from my teaching is कि people are losing humility, humbleness, right? तो यहाँ पे आप कैसे उनको grounded रख सकते हो? आप कैसे उनको एथिकल रख सकते हो? इफ़ देर इज़ नो मॉरल कंपस. मॉरल कंपस इज़ व्हाट? कि स्कैम्स वगैरह इतने सारे आजकल हो ही रहे हैं, राइट? देर इज़ नो मॉरल कंपस ऑफ दोज पीपल. मतलब उनकी कोई मोरालिटी नहीं है, उनको नहीं पता है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. एथिकलिटी इज़ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. हाउ टू डेवलप एन एथिकल एम्प्लॉय? टाटा को सब इतना एथिकल क्यों मानते हैं? They are more honest, transparent, giving, CSR, corporate social responsibility. They donate more than they actually retain, right? वो donation ज़्यादा देते हैं, वो ethical organization है. That the seniors actually listen to their employees and their problems, right? So how to develop ethical employees for the benefit of the whole organization? Right. Right. And the culture that you are inculcating into the organization. Organization का culture ही यही है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ. Right. People will be lying then. People कल की भी छुट्टी वाले दिन में भी साइन करके चले जाएंगे. If there is no biometric. Right. There will be no ethics. There will be no moral compass that will pull you back कि नहीं, this is wrong. Who will be actually telling you? It is actually you yourself who should know. But अगर organization की policies ही यही हैं कि there is a very ethical climate in the organization, then the new employees will also be ethical. They will also adapt.
राइट अगर सभी ऐसे हैं कि एवरीबडी इज लाइक कमिंग एनीवेयर कमिंग एनी टाइम लीविंग एनी टाइम then the other employees who are actually the new people who have joined they will also be adapting as per their level, right? ओके इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई ही है तो लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? A very new, not new, a very important concept that should be there, that should be taught to the present generation. Emotional intelligence. There are Understand the emotions of your employees, and if they are dealing with any problem, they have to sort out, and who are just telling them how to do it. one aspect, correct. Impacting their workplace, if they are impacting their workplace and One aspect you have covered, understanding the emotion of others. There is a practice of employee engagement in order to develop the HR management. So if you want to manage your employees and you want to take care of the conflicts that may arise from day to day, you would want to be you want to have emotional intelligence. Okay. And that's how you can just work better, provide more ethical in a way culture to the company. Okay. One aspect is, what's her name? As Ruchika told, कि emotional intelligence of the firm, right? Culture which is imbibed in the culture of the firm. But what I was expecting was that is also fine कि organization का culture, organization is very brand EQ. Brand is emotionally intelligent. The company is emotionally intelligent, hence the employees within the organization are also emotionally intelligent. What I am asking you is, अच्छा IQ क्या होता है? Intelligence quotient. There are 4 criteria to judge an IQ. क्या जो कैट के एग्जाम में आते हैं क्या क्या? क्वांट, लैंग्वेज, जीके, लॉजिकल, राइट. 4 criteria to judge IQ of a particular person मतलब their ability to do a particular task. ठीक है, कितना वो इंटेलिजेंट है टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. अलग अलग लेवल्स के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग IQ टास्क हो सकता है, राइट. अगर बेसिक नॉर्मल टास्क है, लेट्स से पैकिंग करनी है, यू डू नॉट नीड अ हाई IQ पर्सन इन दैट. ठीक है, बेसिक IQ वाला भी चल जाएगा. ऑन दी अदर हैंड डिसीजन मेकिंग करनी है, you need a person with a good IQ who can analyze things, who can logically reason the things, right? आजकल जब भी employees hire करते हैं, they judge on 2 perspectives. That test is known as, लिख लो या तो है, psychometric test, PSY CO MET RIC. Not here, but I am just telling you. Psychometric test 2 चीज़ों से बना है ये, psychometric. Psycho is how good or how emotionally intelligent you are, how resilient you are. Resilient मतलब कुछ बुरी चीज़ हुई, एक है person A जो उसमें डूब ही गया. For months and years that person has been crying on that particular thing that went wrong. Person B who stood up, who analyzed the situation, who managed his emotions, his or her emotions, and then was quick enough to get back into the correct situation. Resilience. कितना जल्दी आप वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हो जब जो बुरी सिचुएशन हुई उससे पहले वे थे. ठीक है, how quickly you can मतलब how quickly you are able to gather yourself up after something bad has happened. Unconscious mind, situation in conscious and unconscious mind. Unconscious. You have given the remember there are some people who are एक मिनट, हाँ बोलो. जैसे आपने बोला कि आपको डूब रहा है तो सिचुएशन उसको निकलने के लिए मतलब आपके माइंड में सोच रहे थे ऐसा हो गया लेकिन सिचुएशन निकल के
माइंड के भी 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड समथिंग दैट कंट्रोल्स बोथ ऑफ दीज, राइट। कॉन्शियस है जो कि अभी मैं कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, अनकॉन्शियस है कि मैं ड्राइव करती हूँ कि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होना है, इवन इफ लाइक मेरा ये इंस्टिंक्ट है कि आई कैन ड्राइव इवन विदाउट बीइंग लाइक फुल्ली कॉन्शियस। एक है दोनों को जो मॉडरेट करता है, इड ईगो स्टेट्स होती हैं ये। तो इसके अंदर व्हाट आई एम सेइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज दैट, साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर जो साइको है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर है 5 चीज़ें, 5 डायमेंशंस ऑफ EQ, वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के एम्प्लॉयज़ के लिए, आजकल के किसी भी जनरेशन के लिए। नंबर फर्स्ट डायमेंशन इज सेल्फ अवेयरनेस। कितना आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटीज, स्किल सेट पता है। जितना पता होगा उतना ही तो आगे इम्प्रूव कर पाओगे। आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर लाइक हाँ हाँ हो जाएगा ये तो, हाँ आई विल बी एबल टू डू इट, अरे ये तो बहुत छोटा सा टास्क है। दे आर नॉट सेल्फ अवेयर। आई नो कि अगर तुम्हें आज मैं टेस्ट दूँ तुम नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ऑल बट दैट पर्सन हु इज़ इन द, जिसका मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। दे आर रेटिंग सो हाई ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल, सेल्फ अवेयरनेस के स्केल पे, दैट एक्चुअली दे आर नॉट सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस नाम छोटा सा है बट इसको सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट guide you to the path of self awareness which is very difficult to achieve. What are you? Your strength, your weakness, your capabilities. इसी से आता है learning to say no. If you are aware about yourself then you will be able to say no कि नहीं यहाँ तक मेरी बाउंड्री है, उसके आगे मुझसे नहीं होगा, right? कोई आपको ऐसे ही घिसते नहीं रहेगा otherwise. Second dimension of EQ is self regulation. How well you are able to regulate your emotions. Are you replying in the fit of anger? Are you replying impulsively? Impulsively मतलब बिना सोचे समझे आपने रिप्लाई दे दिया. There is no filter attached to your mouth. Right? Self-regulation. How well you are able to regulate your emotions, regulate your or control your emotions and impulses. जितना अच्छे से आप कंट्रोल कर पाओगे उतना ही आगे जाके ग्रो कर पाओगे. काफ़ी बार लगता है कि काश ये चीज़ नहीं बोली होती, राइट? गुस्से में बोल दी, नहीं बोलनी चाहिए थी, राइट? तो ये हो गया, यू आर नॉट बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट ऑन दिस पार्ट, सेल्फ रेगुलेशन वाले पार्ट पे. थर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड. थर्ड डायमेंशन ऑफ EQ, सेल्फ मोटिवेशन. हाउ मोटिवेटेड यू आर योर सेल्फ टू ग्रो. ठीक है, आप लोग यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड हो तभी तो अपने करियर को ग्रो करने के लिए कोर्स में एनरोल करा है, राइट? आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, राइट? कुछ लोग होते हैं जो कि फ्री के कोर्सेज में भी एनरोल करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी सर्टिफिकेशन और एनीथिंग बट दे एनरोल, गेट देमसेल्फ एनरोल्ड इन दोज कोर्सेज. क्यों? फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, बिकॉज दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे वॉन्ट टू बी कॉम्पिटेंट, राइट? फोर्थ, एम्पैथी. यहाँ तक तो हो गया अपने बारे में. एम्पैथी है दूसरों के बारे में. हाउ वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड देयर इमोशंस. पहले 3 क्राइटेरिया में, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेटेड में, आपने अपने बारे में जान लिया, अपने इमोशंस के बारे में जान लिया. यू नो अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कैपेबिलिटीज. फोर्थ क्राइटेरिया एम्पैथी के अंदर आप दूसरों को कितना अच्छे से समझ सकते हो. हाउ वेल यू आर एबल टू जज देयर सिचुएशन, नॉट जज but how well you are able to perceive their situation and help them if required. Many times people just want to share some things with you, they do not need any help or suggestions. Don't give any help or suggestions them. Ask them, do you need any help? Only then help them. काफ़ी बार सिर्फ बताने से ही सामने वाले का बोझ हल्का हो जाता है, राइट? अगर आप उस टाइम पे उसको सजेशन देने लगोगे then that person will not come again to you. कि ये तो अपने आप को महान बताता रहता है, ये तो सजेशंस ही देता रहता है, राइट? तो एम्पैथी, हाउ वेल यू आर एबल टू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज एंड हेल्प इफ रिक्वायर्ड. लास्ट,
सब कुछ हो गया. You are able to understand yourself, you are able to understand others, you are able to upskill yourself, you are motivated, but you are not able to communicate well. Fourth dimension of EQ is social skills. Sorry, fifth dimension is social skills. How well you are able to put your thoughts into words. Communication. ये गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है तो बहुत गड़बड़ है. राइट? इफ़ यू आर एबल, यू आर वेरी गुड, तुम्हें सबकी उसकी सिचुएशन समझ में आ रही है, अपनी सिचुएशन समझ में आ रही है, बट आप ना नहीं बोल पा रहे हो, बट आप उसको सुन नहीं पा रहे हो, आप उससे पूछ नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कन्विंस एनीबडी, देन यू आर नॉट अ हाई EQ पर्सन. आर यू गेटिंग इट? तो ये पांचों चीज़ें होना ज़रूरी है फॉर यू टू बी EQ, हाई ऑन इमोशनल क्वोशंट. ऑर्गेनाइजेशंस जज करती हैं आजकल साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू बोथ EQ एंड IQ. मेट्रिक इज IQ. मेट्रिक का मतलब है यहाँ पे IQ, जहाँ पे आपके टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ गए, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, डाइस के क्वेश्चंस आ गए, ट्रेन स्पीड के क्वेश्चंस आ गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आ गए, दैट इज IQ. राइट? साइकोमेट्रिक क्या हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कुछ पूछेंगे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, एंड दे विल बी आस्किंग यू कि हाउ विल यू रिस्पॉन्ड इन दिस सिचुएशन. मान लो आपने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई विल बी हैंडलिंग द सिचुएशंस एट अ डिस्टेंस. पांचवा क्वेश्चन आ गया, आर यू अ पार्टी पर्सन, आर यू दिस, आर यू दैट, तो वहाँ पे आपने एक्सट्रोवर्ट का क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया, दैट इज़ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर. सेम क्वेश्चन आपको दो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट में, टू जज कि आप क्या अपने बारे में जानते हो, सेल्फ अवेयरनेस, टू जज हाउ विल यू रिएक्ट इन दोज पर्टिकुलर सिचुएशंस, केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे. राइट? क्या आप एम्प्लॉय को बाहर भेज दोगे, क्या आप एम्प्लॉय को व्हाट डू वी से ले ऑफ कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, या फिर एम्प्लॉय को अपस्किल करोगे. राइट? हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशंस. सो इस टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर, साइको वाले पार्ट के अंदर. मेट्रिक, और ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता कि साइको टेस्ट 5 क्वेश्चन, मेट्रिक टेस्ट 5 क्वेश्चन, नो, मिक्स होता है सब कुछ. कभी आपको केस स्टडी आ जाएगी, कभी आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएगा. राइट? हर कंपनी आजकल ये टेस्ट लेती है. अगर आप किसी एनालिस्ट, अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन में जा रहे हो तो, अगर टेस्ट रिटर्न नहीं लेती है, देन दे जज. जो HR मैनेजर्स होते हैं, दे आर द वेरी, दे शुड बी आइडियली हाई ऑन EQ. You all people who want to be the HR managers should be high on EQ. समझ में आना चाहिए सामने वाला पर्सन किस स्थिति में है. राइट? ओके, दैट इज EQ. चैलेंजेस इन HRD. क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? नंबर 1, rapid technological advancements. Right? Change is the only constant, but that constant is very difficult to adopt. Right? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते जा रहे हैं, HR रिलेटेड सिस्टम्स आते जा रहे हैं, लोगों को व्हाट डू वी से पेपर बेस्ड सिस्टम से ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में चेंज करने के लिए बहुत मोटिवेट करना पड़ रहा है. ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज. इतनी देर में कहाँ से आ रहे हो? पूजा वूजा करके आ रहे हो? ओके, we had a very good discussion right now, you missed it. Okay, चलो. Changing workforce demographics, ये भी हमने डिस्कस किया था. डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है. The organizations now are boundaryless organizations, that is anybody from any part of the country or even outside the country, from anywhere around the corner of the world can be your employee. How will you manage them? You cannot devise the same motivation method for this and this person now. There has to be different motivational methods for this employee who is, let's say, from India, and this employee who is, let's say, from America.
American culture is very individualistic in nature. मतलब they do not want to work in teams. Japanese and Asian culture is very collectivist in nature. That is, we want to work in teams, right? Group assignments, team में काम करना, सबको साथ लेके चलना, Asian culture. Western culture, individualistic approach. तो अगर आप दो एम्प्लॉयज़ को who are of different cultures and diversity and ethnicity and race, you are motivating them on the same lines, that won't be able to work, right? Skills gap. स्किल का गैप तो हो ही गया है, इतनी तेज़ी से वी आर प्रोग्रेसिंग, राइट? तो 55-year-old एम्प्लॉय एंड अस, there is a skill gap and we need to bridge that skill gap if we want to keep that 55-year-old into our organization. But many a times if the retirement age is 60 and the 55-year-old employee is not willing to learn, then tap onto their experience. Do not force them to learn. ठीक? Unless and until they are willing to learn. Globalization. Again, different language. हर भाषा में अलग चीज़ का अलग मतलब निकलता है, हर जेस्चर का अलग चीज़ का अलग मतलब निकलता है, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद whom you are interacting, in what mode you are interacting. Talent retention. People do not want to stay at one place. हर एक साल बाद, हर 2 साल बाद they need to upgrade, they need to move to some other thing. आजकल ये you people are Gen Zs, right? No, millennials. What are you people? Baby boomers. What are you people? They do not get the vibe anywhere, right? Vibe नहीं आ रही, let's leave it. मन नहीं करा, let's leave it, right? People from my earlier generation used to be, this is the adjustment phase, let's adjust to it, right? आजकल के बच्चे वाइब नहीं आ रही, छोड़ो, कुछ और करते हैं, पहले ट्रैवल करके आते हैं, which is not wrong, I would say, but you should give time to something or somebody, right, before getting on to some conclusion. Looking for a high compensation hike and if it's less. So if someone is working for a year the same tech stack, they would want to work on something else. And once the project is over, they would want to switch. Right, that could be also a reason why employees do not want to stay, right? They want to grab new opportunities, they are not lethargic, they are motivated to learn new things, and the organization is not providing them the opportunity to learn new things. That is why they are moving. That could also be the reason. Hence यहाँ पे भी again the thing comes, organization should be such जो कि organization जो कि employees का career path पहले से ही lay down करके रखे, that this is the path, 1 year down the line this, 2 year down the line this, 5 year down the line this. It should be pre-set. Okay. Adaptive learning. Again, different people, different pace of learning, different modules of learning, different things to be learned. Okay. Measuring impact. कितना खर्चा हो गया है एम्प्लॉयज़ पे और वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, ये मेजर करना कभी कभार मुश्किल होता है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो दे दी बट उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का अभी उसी टाइम पे इम्पैक्ट नहीं आया, मे बी आगे आने वाले 2-3 सालों में पता लगे उस एम्प्लॉय ने कितना आउटपुट दिया है बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग, अभी नहीं पता लगेगा, राइट? तो व्हाट विल यू डू कि एम्प्लॉय को रखना है कि नहीं रखना है, उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द ट्रेनिंग ऑफ दैट एम्प्लॉय, whatever you have invested into the training of that employee, is that giving back actual returns that you expected or not? ROI बहुत बार आपको फाइनेंस में भी यूज़, ग्रेजुएशन में तो बहुत बार यूज़ करा ही होगा BCom में, राइट? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा डाला है, कितना रिटर्न आया है। यहाँ पे पैसा डालने का मतलब है कितना ट्रेनिंग में आपने खर्चा किया है, राइट? और एम्प्लॉय ने आपको कितना लेट्स से आउटपुट
परसेंटेज प्रॉफिट कितना रिटर्न दिया है, राइट? काफ़ी बार बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल एम्प्लॉयज़ पे, बिजनेस मीटिंग्स के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक्स कर रहे हैं बिजनेस क्लास, राइट? देन एकोमोडेशन बुक कर रहे हैं, बहुत अच्छी 5 स्टार होटल, इंडिया में ही नहीं बाहर भी। इज़ दैट एक्चुअली गिविंग डिज़ायर्ड रिटर्न्स? कि क्या आप उस एम्प्लॉई पे अगर खर्चा कर रहे हो, लेट्स से जितना भी खर्चा कर रहे हो, अगर वो मीटिंग पैन आउट नहीं हुई, सो विल यू लाइक रिमूव दैट एम्प्लॉय फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन? नो, राइट? मे बी उस पर्सन के अंदर इस बार नहीं, अगली बार मे बी दैट पर्सन इज एबल टू फाइनलाइज अ डील एंड क्लोज अ डील. You have trained that person to negotiate and bargain well. Maybe if that deal has not panned out today, maybe that was for your betterment, for the organization's betterment. Maybe that deal was actually harmful to your organization, that is why it did not pan out well, right? तो कितना आपने खर्चा किया एम्प्लॉय पे और कितना वो रिटर्न आपको दे रहा है, दैट इज ROI. मेजरिंग इम्पैक्ट, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डू. हर ट्रांजैक्शन के बाद यू आर नॉट सपोज टू मेजर द इम्पैक्ट, ओके? लॉन्ग रन में इम्पैक्ट को मेजर करो. एथिकल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगेन एथिकल मॉरल कंपास आजकल लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया रेडियस में, राइट? जहाँ होना चाहिए उनका फोकस वहाँ नहीं है, बाकी सब चीज़ों में भी फोकस है, जिसकी वजह से let's say the main focus of the employee is to just earn irrespective of how, right? तो उसका moral compass तो इधर उधर जाएगा ही, right? एक जगह उसका एपिसेंटर में नहीं रहेगा, रेडियस विल बी वाइड, डायमीटर विल बी वाइड, राइट? तो मेक श्योर कि एथिक्स आप शुरू से ही, आई एम श्योर आप लोगों के अंदर आपकी फैमिलीज एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने इनकलकेट किए हैं. And you also, whenever you are the HR managers in the organization, you inculcate that into the, you imbibe that into the organization's culture, right? Goals of HRD, हम इनको बस एक रीड कर लेते हैं. स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का क्या मतलब है? स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट ऑफ यू, ऑफ द एम्प्लॉयज़. करियर एडवांसमेंट, करियर को एडवांस करना के कौन, किसके? एम्प्लॉयज़ के, मैनेजर्स के. ले अ पाथ फॉर देयर प्रोग्रेशन. लर्निंग कल्चर, कल्चर अगेन, राइट? इम्बाइब द लर्निंग कल्चर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो तो सीखना पड़ेगा, दैट शुड बी द कल्चर. लीडरशिप डेवलपमेंट, डेवलप द फ्यूचर लीडर्स, राइट? इम्बाइब दैट EQ इनटू द पीपल, सो दैट आगे जाके वो अच्छे लीडर्स बने, ठीक? टैलेंट मैनेजमेंट, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल होता नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द एम्प्लॉयज़ दे हैव रिक्रूटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर रन, राइट? ऑन एन एवरेज पहले जापानीज़ कल्चर के अंदर, मतलब वो शुरुआत और रिटायरमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में करते थे. अमेरिकन कल्चर के अंदर 1-2 साल, मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम, नो लॉयल्टी फॉर वन पर्टिकुलर वर्क प्लेस, राइट? तो वर्क प्लेस लॉयल्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लॉयल्टी लाने के लिए यू हैव टू बी देयर फॉर द एम्प्लॉयज़, ओके? नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग क्या होता है? काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक एम्प्लॉय को पता है, दूसरे को नहीं पता, तो दे शुड बी कम्युनिकेटिंग वेल विद ईच अदर, राइट? इंडिविजुअलिस्टिक तो इंडिया में वैसे भी नहीं है, मूव कर रहे हैं, बट होना नहीं चाहिए. पीपल आर मोर लाइक कि हम तो इंट्रोवर्ट हैं, हम किसी से बात ही नहीं करते, हम अलग जाके बैठ जाते हैं. नो, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो, यू विल बी ग्रोइंग विद अ टीम, you will need people to push you, right? To grow as a team always. Adapting to change, क्या कुछ बोलना है बताओ? Adapting to change, change, what is change?
Changes what? ओके, चेंज का एक प्रोसेस होता है, राइट? दैट प्रोसेस इज व्हाट? सबसे पहला पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज अनलर्निंग what you have learned in, let's say, past employees के केस के अंदर past 30 years, you have inculcated that, that is your personality now. Somebody asks you to change it कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा. अनलर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो चीज़ जो आपके अंदर इम्बाइब्ड है उसको अनलर्न करना, देन ट्रेनिंग लेना, एंड देन उसको फिक्स करना, रीफ्रीज करना. तो अनलर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रट गया है, राइट? पढ़ा है अकाउंटिंग किस किसने? सभी ने पढ़ा है, राइट? ऑलमोस्ट. ओके, तो लेट्स से अकाउंटिंग के अंदर देयर इज अ रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मैं इसको चेंज कर दूँ, राइट? लेट्स से मैं कोई नई अकाउंटिंग के रूल्स लिख दूँ. That unlearning phase will be the most difficult part while framing the journal entries, right? आपको वही याद आएगा, पहले इतने साल से आपने यही चीज़ 5 सालों से पढ़ी है, that debit what comes in, credit what goes out. You will be debiting the purchase account and crediting whatever you have purchased, right? Okay, उसको unlearn करना will be difficult part, and that is actually the most difficult part. उसको कैसे आप how you as an HR manager, okay, each one of you is an HR manager here. Imagine, right? Manifest. Okay, so being the HR managers, let's say there are employees in the organization who are not willing to change. क्या करोगे? Let's say you are the HR manager, he is not willing to adapt to the new system. काउंसलिंग में क्या बोलोगे? क्या? उसको पता है कि ऑर्गेनाइज मीटिंग में सबको बता दिया था कि ये चेंज है. You as a specific HR manager, how will you motivate, how will you convince this person to change? सोचो. Okay, one way, if this particular person is motivated through rewards, right, then you will do that. ठीक है. और ओके ओके कि लेट्स से कंप्यूटराइज सिस्टम ही है, कोई सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना है विच ही इज़ नॉट विलिंग टू अडॉप्ट. वो बोल रहा है कि मैं तो पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे ही काम करूँगा, आई एम यूज टू दैट सॉफ्टवेयर. तो यू विल बी टेलिंग द एडवांटेजेस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एंड द एडवांटेजेस दैट द सॉफ्टवेयर विल, राइट. सो जो उस सॉफ्टवेयर से कंपनी को क्या फ़ायदा है, उस सॉफ्टवेयर से एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा, यू विल बी लिस्टिंग ऑल द सेट ऑफ एडवांटेजेस टू दैट पर्सन. ठीक है. उसके बाद मे बी वो मोटिवेट हो जाए कि हाँ अगर इतना ही फ़ायदेमंद है, सभी कर रहे हैं, राइट. गिव देम एग्जाम्पल्स कि आपके साथ ये दो भी थे, आपकी टीम के ही लोग हैं, आपसे एज में बड़े हैं, दे हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम, वाई आर यू नॉट विलिंग टू अडॉप्ट इट, राइट. गिव देम एग्जाम्पल्स, गिव देम केस स्टडीज, गिव देम एडवांटेजेस, motivate them through rewards, motivate through recognition, right? Okay, where were we? Change. Performance improvement. Human resource development का main focus ही है performance को improve करना. क्यों आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइंड नहीं है एंड ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कमा के नहीं दे रहा है, वाई आर यू मोटिवेटिंग, वाई आर यू स्पेंडिंग ऑन दैट एम्प्लॉय इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग फ्रॉम दैट एम्प्लॉय,
It is always a give and take, right? Innovation and creativity. Unless and until you provide some area to the employees to expand and be creative, be innovative, कुछ न्यू नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई न्यू आइडिया नहीं आएगा, कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट? सो यू नीड टू गिव दैट स्पेस टू दी पीपल so that they are able to innovate and be creative. They should not be hesitant. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है that there is a very strict boss कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा. You don't be that boss. Okay. What type of boss you should be or what type of leader you should be कि आप सबको सुन रहे हो, जो सही है उसको फॉलो कर रहे हो, राइट? Even if that correct thing is coming from a very basic level employee, right? Flexibility. Okay. Other goals which include ethical and inclusive behavior. We have talked about ethical behavior. Measurable outcomes. Outcomes should be measurable. Training दी है, उसका 1 साल के बाद result आपको दिखना चाहिए in the terms of ROI. Cost effective development. कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट इज़ व्हाट कि आप एक ट्रेनिंग इफेक्टिवली दे रहे हो, ये नहीं कि उसी को रिफ्रेशर ट्रेनिंग बार बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय को देनी पड़ रही है, राइट? ट्रेनिंग शुड बी सच जो कि एक बार में समझ में आ रही है एंड उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, और विच शुड बी रिलेटेड. ये नहीं कि एक एम्प्लॉय आपके सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और आप उसको गिटार के लेसन दे रहे हो, राइट? टोटली अनरिलेटेड. एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंस. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी वॉट एवर डेवलपमेंट यू आर पेविंग फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय दैट शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेड. ओके ओके. नाउ व्हाट आर लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ मैनेजर्स? ये भी आपने BOM में पढ़ा हो, बिजनेस. लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ मैनेजर्स. Any example of line management? Line is basically related to core functions of the organization. Let's say finance, marketing, let's say not even research. Let's say IT, right? Not even IT. Finance, marketing. Let's say these are the 2 core departments in the organization. Staff is the supporting staff. Line and staff. Staff के अंदर आता है supporting staff. Let's say IT. Let's say HR. अब HR is recognized as a line department, but earlier it used to be a staff department. It is a support staff, right? Research and development. Every organization now has a research and development cell, research and development staff, research and development department. पहले क्या होता था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज्ड टू बी अ स्टाफ फंक्शन, मतलब सपोर्टिंग फंक्शन. नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट कि इट हैज़ बीन इनटू द लाइन फंक्शन. जो मेन डिपार्टमेंट ही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, राइट? तो लाइन डिपार्टमेंट इज द मेन फंक्शनल कोर फंक्शनल डिपार्टमेंट. स्टाफ इज द सपोर्टिंग डिपार्टमेंट. ठीक है. रोल ऑफ लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ मैनेजर्स इन HRD. लाइन मैनेजर्स का रोल इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्योंकि ये फंडामेंटल डे टू डे फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, राइट? तो लाइन मैनेजर्स को ये करना है कि दे शुड बी डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द कोर एरियाज दे आर इनटू. परफॉर्मेंस अप्रेजल. एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है तो फाइनेंस मैनेजर ही तो बताएगा हाउ दैट एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग, राइट? करियर डेवलपमेंट. लाइन मैनेजर ही करियर डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेंगे, बिकॉज दे आर नॉट द सपोर्ट स्टाफ, दे आर द कोर स्टाफ. दे नो आगे जाके क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कौन प्रोवाइड करेंगे? लाइन स्टाफ की, लाइन डिपार्टमेंट की. लाइन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फीडबैक एंड रिकॉग्निशन. यू आर इन द कोर डिपार्टमेंट, फीडबैक भी कौन देगा? आपका मैनेजर. एंड टीम डेवलपमेंट. स्टाफ मैनेजर्स.
लेट्स से यहाँ पे हम स्टाफ मैनेजर्स की बात करें, HR प्रोफेशनल्स हेयर, राइट. Strategic planning. Strategic again. Strategy is a long-term strategy, right? So HR department is planning for the long run of the organization. Program design, training. किसके लिए कौन सा प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, राइट. सबको एक जैसा ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते. पहले फीडबैक आएगा फ्रॉम द लाइन मैनेजर्स. फीडबैक के बेसिस पे द स्टाफ डिपार्टमेंट, the staff managers will be designing the training programs for each particular employee as per their skill set which is required to imbibed into them. Resource allocation, कितना resource allocate होगा hiring में, कितना resource allocate होगा research में, कितना resource allocate होगा उनकी development में. Assessment and evaluation, ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट तो ज़रूरी है, अदरवाइज हाउ विल यू नो कि दीज पीपल हैव बीन ट्रेन्ड. देयर हैज़ टू बी सम इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट. पॉलिसी डेवलपमेंट, यहाँ पे पॉलिसी डेवलपमेंट का मतलब है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू HR पॉलिसीज, राइट. कंप्लायंस एंड लीगल इशूज़, HR डिपार्टमेंट ही देखेगा कंप्लायंस एंड लीगल इशूज़. मिनिमम वर्किंग आवर्स, minimum wages, gratuity act, what else, the PF provident fund, right. Employee जब leave कर रहा है 5 साल हो गए, then you will be giving some benefits to the employee for serving for so long. So वो सब कौन देख रहा है, HR department. Technology integration, if the particular employee is not ready to adopt the technology, कौन motivate कर रहा है, HR department. Benchmarking and best practices, again benchmarking and best practices. Let's say you are imbibing the ethical culture into the organization, right. आप उस तरीके से employees ही ऐसे उठा रहे हो which are ethical in nature, okay. climate and culture, right. We had the difference. क्या था difference? Anybody else जो कि बाद में आए थे? Difference between culture and climate. बताओ पीछे वाले बच्चे या फिर आगे वाले बच्चे. Culture and climate का difference. What do you think? As per your perception, क्या दोनों एक होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं? नाम अलग तो होंगे भी अलग ही. कल्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही यही है, मतलब practices, yes, कि what all traditions, what all values, what all belief does the organization hold. Past से ही, from the very beginning, how is the organization? Is the organization very employee friendly? Is the organization very strict? Is the organization very innovative? Is the organization very flexible? ये होता है कल्चर, जो कि पास होता है ट्रेडिशन से, जो कि पास होता है फ्रॉम ओवर द ईयर्स. क्लाइमेट क्या होता है, शॉर्ट स्पैन में, how you perceive that particular situation to be. Let's say there has to be some major merger going on. merger करने वाले हो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, राइट. तो दैट इज़ द क्लाइमेट. उस टाइम पे क्या है सिचुएशन, दैट इज़ द क्लाइमेट, ओके. ओके, HRD क्लाइमेट होना कैसा चाहिए. नंबर 1, लीडरशिप कमिटमेंट. कमिटमेंट लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप एंड कमिटमेंट लीडरशिप क्या होती है? एनी एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड लीडर या फिर लीडर दैट यू एडमायर?
right. If the leader is committing to their targets, the staff will also follow, right. तो लीडर भी ऐसा होना चाहिए कि not somebody who just promises and never does things. एसी बंद भी करना है, बंद करवा दो, बंद कर रहे हैं। सबके लिए बंद करना है ना. ओके, बाय द शो ऑफ हैंड्स बंद करना है. ओके. HRD climate. Second, open communication. Communication should be open, free. इतना भी free नहीं that there is so informal communication या फिर informal climate into the organization कि everybody is speaking anything and everything that they want. No. Open communication का मतलब है that they are free to give their opinion, free to give their advice, free to give their feedback. Right? Not open communication in the informal sense. Learning opportunity. Climate should be such जहाँ पे learning is there. Right? Learning is happening on a continuous basis. Not a one-time task. कि अभी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है तो अभी लर्न कर लो क्योंकि रिपोर्ट में तो अच्छा लिखना है. नो. Learning should be from the very beginning and from the very it should be there in the culture and the climate of the organization कि ये organization is a learning organization. यहाँ पे आओगे सीखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी. यहाँ पे आओगे you have to be on your toes every time, right? Resources and support. Resources and support. काफ़ी बार पढ़ने के लिए organization also provides some monetary benefit, right? If you want to study, if you want to progress in your career, तो आपके लिए इतना पैसा हम allocate कर रहे हैं. You go, you come back and उसके बाद एक bond sign करवाते हैं. That after you have learned this course, you will be serving in this organization for let's say 1 or 2 years. Otherwise पढ़ाई करके कहीं और चले जाए तो फ़ायदा नहीं है ना. ROI भी तो निकालना है, right? तो ऐसा कुछ bond कर देती है companies कि we will be funding your education. You go, study, come back and serve for us at least 2 years. Right? Feedback and evaluation. ये तो continuous process होता है. Feedback every year, evaluation every year. उसी के basis से bonuses and benefits मिलते हैं. ठीक? Okay. Recognition and rewards. Feedback के basis पे recognize करोगे, reward दोगे. Goal alignment. What two goals are aligned here? Organization के and employee के, right? These two goals must be aligned. ये नहीं कि आप let's say एक NGO चलाते हो, आपने एक ऐसा person को employ किया है who wants to earn. NGO में तो नहीं हो पाएगा, right? So the goals need to be aligned. You need to make it very clear from the very beginning कि कभी कभी हो सकता है हमारे पास इतना फंड आए और हम इतनी ही आपको पेमेंट दे पाएँ. हो सकता है कभी कभी कुछ ना भी दे पाएँ. Because this is an NGO, non-government, NPO, non-profit organization. अगर आप यहाँ पे हेल्प करने के लिए, अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस के लिए आ रहे हो, वेल एंड गुड. पैसा कमाने आ रहे हो, यहाँ पे आपके साथ ज़्यादा लंबी नहीं जमेगी, राइट? Inclusivity and diversity, various people, boundaryless organization, right? We have discussed this. The climate should be such कि सबको एक साथ लेके चले. Inclusive culture, भेदभाव ना करें. And learning culture, flexibility, right? Flexibility to accommodate the needs of the employees. Career development, ये तो बहुत important है. Otherwise, people like you will leave. राइट? हर 1 साल बाद, हर 6 महीने के बाद वाइब नहीं आती अदरवाइज. ओके. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है, अडॉप्ट करना, लर्न करना एंड उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परमानेंटली इम्बाइब करना. एथिकल बिहेवियर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द मॉरल कंपास ऑफ द पीपल. नॉलेज शेयरिंग, sharing of experiences and knowledge. And change readiness, unlearning, training and then freezing. ठीक है?
Okay. You must have heard about Google, right? Why is Google considered as the best place to work for? Acha, write down. Don't write this down. How you want your organization to be like. The culture of the organization. क्या चाहते हो आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से? Any 2, 3, 4, 5 points शॉर्ट में. This. Flexible timings. Okay. हाँ ऐसे ही बोल दो. Working hours, they have this thing that any employees can sit and they can work on themselves also. They have different kind of working hours, which is very exciting for them. I am not asking about Google. I am asking कि whatever organization that you will be joining or making, ये दो ही चीज़ें होंगी ना, या तो एम्प्लॉय बनोगे या एम्प्लॉयर बनोगे, राइट? आई होप द एम्प्लॉयर बनो. तो आप कैसा ऑर्गेनाइजेशन लेके आओ, कल्चर लेके आओगे, एंड दूसरा अगर आप एम्प्लॉय बने तो आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रेफर करोगे? कि a culture where flexi timings are there, a culture where people are able to work upon themselves, learn about themselves and okay. और वाह ठीक है. मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए. Politics or less politics in the organization. लेस पॉलिटिक्स एंड Less politics or no politics, where there should be no, or if there is less as compared to the other. ओके. राइट. पहले बाहर से कैसे पता लगेगा? वो तो आप जाओगे फिर वाइब नहीं आएगी, फिर बाहर निकलोगे, राइट? पहले तो पता ही लग सकता. एवरीबडी विल बी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वही बुरा बोलता है जो छोड़ के जाने वाला है. ओके. अदरवाइज कोई बुरा नहीं बोलता, सब बोलते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है. या तो किसी को अपना ऐसा सिचुएशन दिखानी है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तब वो बोलता है कि हाँ बहुत काम है, ये है वो है. अदरवाइज नेगेटिव वो तब भी नहीं बोलेगा कि इतना पॉलिटिक्स है. या तो कोई बहुत ही क्लोज है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली है, उससे शेयर कर सकते हैं. अदरवाइज आपके साथ मैं क्यों शेयर करूँगी, राइट? कि क्या निटिग्रिटीज़ ऐसा सब कुछ है. ओके. पॉलिटिक्स जो कोर पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे जाके ही पता लगती हैं, राइट? हाँ इट्स गुड कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयर बनोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करोगे, राइट, तो उस जगह पे पॉलिटिक्स कम हो, ये इंश्योर कर लेना. और फ्लेक्सी टाइमिंग्स, गुड पे, लेस पॉलिटिक्स, एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच, जॉब सिक्योरिटी. हाँ okay. Maybe let's say some activities are planned from time to time, team building activities. Some you are being employed to go outside the workplace and experience new things. Okay. ठीक है. तो let's see what Google does. एक बार just running reading करना. ओके. तीन चीज़ें. वर्क प्लेस मेंटोरिंग, राइट, टू मेक श्योर कि आपस में एम्प्लॉयज़ की ठीक से बने, राइट. जिसको एक चीज़ आती है वो दूसरे को सिखाए. जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दैट पर्सन हैज़ लर्न समथिंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, पास ऑन टू द अदर पर्सन ऑल्सो, राइट. जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती वहीं पे ये सब होता है.
करियर मैनेजमेंट, क्लियर पाथ लेट डाउन कर दिया है गूगल ने कि आपका करियर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, इन द कमिंग ईयर्स यू विल बी सीइंग योरसेल्फ हियर. इनोवेटिव टाइम ऑफ the creative time, right, that you people were also talking about. 20% of their total time spent in the office could be allocated to their activities that they like. And the last two, leadership development. गूगल कोर्सेज देता है अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट, बाहर वालों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है. सो दिस इज़ वाई, बिकॉज दे वांट टू डेवलप द फ्यूचर लीडर्स. Talent acquisition and retention, nobody leaves Google when they have joined, at least in the initial few years. क्यों? पैकेज अच्छा है, पैकेज, राइट. रिटेंशन के लिए या तो दो ही चीज़ें से रिटेन हो सकता है एम्प्लॉई, या तो आप इसको इतना मोटिवेट करो कि आगे आपका पाथ, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो आप उसको स्टार्टिंग सैलरी ही इतनी ल्यूक्रेटिव दो कि और कहीं पे वो स्विच ही ना कर पाए. गूगल डज बोथ. ठीक, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो. नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अनदर. Any doubt? Anything, any slide that you want me to run? Any heading? Evolution. Attendance लिख दी सबने? Marked? कोई और कोई डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, पूछ सकते हो. बदरपुर से कैसे आना है? दोनों बदरपुर से आते हैं? कैसे आते हैं? मेट्रो, कश्मीरी गेट, सी सेक? दोबारा रिपीट अगेन. Okay. Are you pursuing any internship also? From where? Okay. Okay. So courses कर सकते हो ऑनलाइन? ओके, आई वुड सजेस्ट, जैसे हम इतना EQ के बारे में आज बात कर ही रहे थे, तो दे हैव बीन लॉट्स ऑफ कोर्सेज ऑन EQ ऑन Coursera. यू कैन परस्यू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट. सर्टिफिकेट चाहिए देन यू विल बी पेइंग समथिंग. ठीक है, तो बिकॉज पीपल नीड टू हैव दिस EQ राइट नाउ. आजकल की जनरेशन में पीपल, अर्लियर टू आवर जनरेशन, आजकल के इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, पीपल बिफोर आवर जनरेशन यूज टू बी वेरी रेजिलियंट. प्रॉब्लम आती थी, दे यूज टू फेस इट एंड दे यूज टू गेट बैक. पीपल ऑफ आवर जनरेशन आर मोर की प्रॉब्लम आई है एंड देन उसी में दे हैव बीन सिंकिंग इनटू दैट. दैट शुड नॉट हैपन, right? And you people, if are going to be the HR professionals, need to be emotionally intelligent to understand other people. Not only to understand yourself, but to even understand other people. So there is a course on Coursera upon on the basics of EQ. You can do that. Certificate चाहिए तो पैसे दे के certificate भी ले सकते हो if you want to attach that to your CV. ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एडेक्स पे है, MIT के भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं EQ पे. सो यू कैन एक्सप्लोर दोज कोर्सेज. लाइक पाइथन एंड ऑल? ओके 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 ओके.
HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS। तो इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको वो बताएंगे। पहले यू हैव टू चूज़ वन सॉफ्टवेयर एंड देन लर्न दैट। HRIS इज बेसिकली, दिस इज अ टाइटल विच आई एम टेलिंग यू, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो बीइंग मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ऑलरेडी, हर कंपनी अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को चेंज भी करवाता है, राइट? उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि पेरोल रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, टैली सीख लो, अदरवाइज टैब्ल्यू, पावर बीआई। पावर बीआई इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल आजकल प्रेजेंटेशंस के लिए। पावर कैपिटल में BI, BI स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, EQ, टैब्ल्यू या फिर पावर बीआई कर लो। पावर बीआई इज़ मच बेटर। ओके, तो एज एन HR प्रोफेशनल यू माइट बी गिविंग प्रेजेंटेशंस ऑल्सो। तो प्रेजेंटेशंस को कैसे इंटरैक्टिव बनाना है, कैसे डेटा को उसके अंदर सब एक जगह लेके आना है, तो पावर बीआई। ओके, और साथ के साथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन लाइक इंटर्नशिप्स एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज करते रहो। एवरीबडी हैज साइन दिस?